محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات۔ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ TRC اسکیمات سے ہر گھر روشن، ویلپور میں ملے دفتر پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے مختلف CMRF کلیانہ لکشمی کی عرضیوں کو دی منظوری۔ رواں سال کا آخری چاند گرہن کا آغاز صبح 5:30 تک رہے گا جاری۔ ہندوستان بھر میں دوپہر 2 بجے سے گرہن کی ہوئی شروعات۔ نندی پیٹ میں متحدہ ضلع MLC کے کویتا و PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے کارتکا پورنمی کے سبب انجام دی خصوصی پوجا۔ منوگڑو عوام کا فیصلہ قابل ستائش و تاریخ ساز۔ ریاستی وزیر KTR سے TSRTC چیئرمین بارجیڈی گوردھن نے ملاقات کرتے ہوئے کیا اظہار۔ گرو نانک جینتی کے موقع پر ضلع کلکٹر نارائن ریڈی و میئر نیتو کرن نے کی تقریب میں شرکت و پیش کی مبارکباد۔ ہندوستان میں 500 و 1000 روپے کی کرنسی نوٹ کو منسوخ ہوئے آج 6 سال مکمل۔ نوٹ بندی کے 6 سالوں میں ڈیجیٹل لین دین میں ہوا کافی اضافہ۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ 9 نومبر کو پوری دنیا میں یوم اردو کا انعقاد، لیکن ضلع و شہر میں کوئی ایک تقریب منعقد نہیں، افسوس۔ 8 ماہ بعد کل مجلس بلدی نظام آباد کا انعقاد، مسائل پر ہوگی یکسوئی یا ہنگامہ آرائی، عوام کی نظر۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ یوم اردو کے موقع پر ضلع و شہر میں ایک بھی تقریب کا انعقاد نہیں، خادمان اردو کے لیے لمحہ فکر، افسوس۔ 9 نومبر کو پوری دنیا میں عالمی یوم اردو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو حضرت علامہ اقبال کی یوم پیدائش کی نسبت سے یوم اردو کے نام سے موسوم کیا گیا، اور آج کے دن اردو کے قدردان، خدمت گزار و اردو سے وابستہ طبقہ کافی جوش و خروش کے ساتھ انعقاد کرتا ہے۔ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر ہے جو تاریخ میں گزرے۔ وہ ایک دور اندیش شاعر تھے اور ان کی شاعری کو آج تک بھی ہر دور میں کافی پسند کیا گیا ہے۔ ان کی کلمات و شاعری کے بنا آج تک بھی اردو کی کوئی محفل ختم نہیں ہوئی، اور ان کی لکھی نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا کو پورے ملک میں کافی قبول کی جانے والی نظم ہے۔ لیکن آج جہاں پر اردو کے نام پر بے خوف کئی محفلوں کو روب عمل میں لایا جاتا ہے، لیکن آج یوم اردو کے موقع پر ضلع و شہر کے تمام خدمت مان اردو یوم اردو سے ناواقف نظر آئے۔ جہاں پہلے اردو یونیورسٹی یا پھر تلنگانہ یونیورسٹی میں یوم اردو کا انعقاد عمل میں لایا جاتا تھا، وہاں بھی آج خاموشی نظر آئی۔ منوگڑو انتخابات میں TRS امیدوار کی کامیابی پر آرمور تلنگانہ جاگرتی اقلیتی خواتین سیل صدر سمینا بانو کی جانب سے جشن کا انعقاد و عوام میں مٹھائی کی گئی تقسیم۔ منوگڑو انتخابات میں TRS امیدوار کی شاندار کامیابی پر آرمور تلنگانہ جاگرتی اقلیتی خواتین سیل صدر سمینا بانو اور عظمت اللہ کی جانب سے جشن مناتے ہوئے آتش بازی کی گئی اور وارڈ نمبر 17 میں گھر گھر مٹھائیوں کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے روب عمل میں لائے جانے والی اسکیمات کا ہر کوئی شیدائی ہے، اور ان کی بے لوث کارکردگی کے سبب ہی عوام ہر انتخابات میں صرف TRS کو ہی چن رہے ہیں، اور اس انتخابات میں PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی صاحب کی جانب سے انتخابی مہم میں کافی جدوجہد کی گئی، اور ان کے حلقے میں TRS امیدوار کو کافی اکثریت سے ووٹوں کا حاصل ہونا کافی خوشی کی بات ہے آرمور کے عوام کے لیے۔
मदरसा इमदादुल उलूम नारायण खेड़ में हर साल की तरह इस साल भी एक रोज़ा सीरत तैयबा कॉन्फ्रेंस निज़ामाबाद, भीमगल और पेरकेट के अलावा दीगर मुकामात पर इश्तिहारात की रस्मी इजराई। नारायण खेड़ ज़िले संगारेड्डी का एक मुमताज़ और अपने अंदाज का मुनफरिद दीनी अकामती मदरसा इमदादुल उलूम जलालपुर, जहाँ मुख्तलिफ शोबों में दीनी तालीम व तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम है, जहाँ सैकड़ों तुलबा इल्म दीन से वाक़िफ़ियत हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि ये मदरसा रियासत तेलंगाना व आंध्रा के मुमताज़ आलम दीन शेख तरीक़त हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़वी साहब नाज़िम इदारा अशरफुल उलूम ट्रस्ट हैदराबाद के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला एक बेमिसाल व बाफ़ैज़ इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से हर साल तुलबा हाफिज़ कुरान बनते हैं। साल हाल तकमील हफ्ज़ करने वाले तुलबा की हिम्मत अफजाई की गर्ज से एक रोज़ा प्रोग्राम जलसा सीरत तैयबा के उन्वान से बतारीख 13 नवंबर बरोज़ इतवार सुबह ता शाम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें आलम इस्लाम के मोतबर व मौक़र उलमा कराम और मुल्क के बड़े बुजुर्गान दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद अज़मी नायब मोहतमिद व उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना अनीस अहमद आज़ाद बलग्रामी के अलावा मौलाना अतीकुल रहमान और मुफ्ती सुलेमान अजमल साहब व दीगर उलमा कराम शिरकत करेंगे। इंशाअल्लाह बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इस प्रोग्राम में मुसलमानों के साथ साथ बिरादान वतन हर साल शरीक होकर सीरत रसूल के उन्वान पर मुख्तलिफ उलमा कराम के खिताबात से इस्तिफादा करते हैं। इस साल भी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक और दीगर रियासतों से हजारों की तादाद में मुसलमानों की शिरकत होगी। लिहाजा इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मलिक अनीस क़ासमी, मौलाना अब्दुल रहमान मोहम्मद मियाँ, हाफिज मोहम्मद खलील के अलावा दीगर उलमा व आइमान अवाम उन्नास से शिरकत व इस्तिफादे की पुरखुलूस अपील करते हुए कहा कि बमक़सद इजलास आम में ज़रूर शिरकत करें। तमाम ही मुसलमानों से ये अपील और ख्वाहिश की जाती है कि 13 नवंबर बरोज़ इतवार 2022 इदारा इमदादुल उलूम जुजालपुर नारायण खेड़ ज़िला संगारेड्डी में एक रोज़ा सीरत तैयबा कॉन्फ्रेंस हर साल की तरह इस साल भी मुनक़िद की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में अवाम और उलमा को मुखातब करने के लिए एशिया की अज़ीम इस्लामी यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमीम हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब, उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद और इसी तरह हज़रत मौलाना अनीस अहमद क़ासमी आज़ाद बिलगिरामी जो दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं, मुफस्सिर कुरान हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब नाज़िम जामिया गुलशन खैरुन्निसा जो कर्नाटक के एक मशहूर आलिम दीन हैं, और इसी तरह हज़रत मौलाना सुलेमान अजमल साहब मज़ाहिरी, ये 4 बुजुर्गान दीन यहाँ पर ख़िताब करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क़ियाम इदारे अपने क़ियाम से लेकर अब तक अपनी मुसलसल पेशरफ़ में कामयाब चल रहा है और इसके जो मक़ासिद हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हो रही है। इस मरतबा भी इदारे के इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए हम आपसे तमाम सामे नाज़रीन से ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि आप ज़रूर अपना वक्त फ़ारिग़ करके इस प्रोग्राम में शरीक हों और इस मौके पर सीरत के उन्वान से मुख्तलिफ़ उलमाए कराम के बयानात भी तय किए जाते हैं ताकि जुड़ने वालों को कुछ इल्मी फ़ायदा भी हो। चुनांचे इस मरतबा मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस और नायब मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना राशिद साहब आज़मी दामत बरकातुहुम बतौर मेहमान ख़ुसूसी इसमें तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसी तरीक़े से दिल्ली के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना अनीस अहमद आज़ाद क़ासमी बिलगिरामी दामत बरकातुहुम, खलीफ़ा हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम भी इसमें तशरीफ़ फरमा होंगे और इलाक़ाई तौर पर हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और मौलाना सुलेमान अजमल साहब दामत बरकातुहुम इस प्रोग्राम से मुखातब करेंगे। आप तमाम हज़रात से फिर दोबारा अपील है कि 13 नवंबर बरोज़ इतवार 2022 ईस्वी को अपना वक्त फ़ारिग़ करके इस इजलास में ज़रूर शरीक हों और इजलास करने वाले ज़िम्मेदारों, कारकुनों और मदरसे के असातिज़ा की हिम्मत अफजाई का आप बाइस बने। मदरसा इमदादिया दारुल उलूम भीमगल में तुलबा को इनामात की तक़सीम।
भीमगल मदरसा इमदादिया दारुल उलूम में शिशमाई इम्तिहानात के मौके पर मदरसे के तलबा ने इम्तिहान में आला नंबर से कामयाबी हासिल करने पर इन तमाम तलबा को मदरसे हज़ाक की जानिब से इन तमाम तलबा को इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुफ्ती महमूद साहब इदारा मजहरुल उलूम इनामात और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासिमी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सदर मदरसा नायब सदर असगर अली, हाफिज नजीब, हाफिज तबरेज, हाफिज सिराज, मुफ्ती शौकत बेग, हाफिज फारूक, हाफिज सलीम, हाफिज मोहसिन व दीगर हजरात मौजूद थे। MLC के कविता से हल्का असम्बली आलमूर की तरक्याती कामों के लिए जिले हरकयाती क़ायद TRS पार्टी सुमेर अहमद की नुमाइंदगी। हल्के असम्बली आलमूर के तरक्याती कामों की अंजाम दही के लिए MLC के कविता से इनके दौरे निज़ामाबाद के मौके पर हरकयाती क़ायद ज़िले TRS पार्टी सुमेर अहमद ने इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए हल्के असम्बली आलमूर के ज़ेर इल्तिवा व दीगर कामों की आजिलाना एक्सपी के सिलसिले में एक तफसीली तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए बताया कि सरकारी हुक्मनामा 58 के तहत 30 लाख रुपए मंजूरी अमल में लाई गई थी, जिसमें से 15 लाख रुपए की रकम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर निज़ामाबाद के अकाउंट में हुकूमत की जानिब से जमा की गई। बाकी 15 लाख रुपए रकम फौरी तौर पर इजराई के लिए मुतालबा किया। इसके अलावा मस्जिद खुदानपुर विलेज नंदीपेट मंडल में वाक़ मुस्लिम कब्रिस्तान के सारबंदी के लिए 30 लाख रुपए और मस्जिद सकीना शास्त्री नगर आलमूर के कामों के लिए 20 लाख रुपए मंजूरी करने के लिए रुकन असम्बली आलमूर जीवन रेड्डी सदर जिले TRS पार्टी व PUC कमेटी चेयरमैन के तौर से तजावीज़ अरसाल की गई थी। सुमेर अहमद की नुमाइंदगी पर MLC के कविता ने फौरी तौर पर इन फंड्स की मंजूरी के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखलाती बहबूद नदीम अहमद को मकतूब अरसाल करते हुए हल्के असम्बली आलमूर की तरक्की के लिए 80 लाख रुपए की इजराई को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया, जिस पर सुमेर अहमद ने इन फंड्स की फराहमी के लिए रुकन कौंसिल के कविता व रुकन असम्बली आलमूर जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन MK मुजीबुद्दीन और TRS के रियासती कायदीन नीतू वेणुगोपाल राव ने रिबन कट कर कामारेड्डी में नए कायम करदा नूर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, जिसके बाद इन्होंने नए कायम करदा नूर हॉस्पिटल के मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी और इन्हें बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने का मशवरा दिया। रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन MK मुजीबुद्दीन, TRS के रियासती कायदीन नीतू वेणुगोपाल राव ने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन गड़म इंदु प्रिया चंद्रशेखर रेड्डी के साथ कामारेड्डी कस्बे के इंदिरा नगर कॉलोनी में नए कायम करदा नूर हॉस्पिटल का रिबन काट कर इफ्तिताह किया और इसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल इंतजामिया और आम लोगों को मुबारकबाद दी। नूर हॉस्पिटल की इंतजामिया को सिर्फ 80 रुपए की मामूली फीस पर सस्ता इलाज फराहम करने पर मुबारकबाद दी गई। वाइस चेयरमैन को एजाज से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में काउंसलर्स सलीम, हॉस्पिटल के मुंतज़मीन अखिल अहमद और दीगर ने शिरकत की। नूर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट मोहम्मद शकील और मोहम्मद अखिल बोल रहा हूँ। हम लोग यहाँ अपने कॉलोनी में 3-4 कॉलोनीज है, कॉलोनीज में पूरे RMP से पेशेंटों को तकलीफ हो रही और कभी टाइम पे डॉक्टर सही अवेलेबल नहीं रह रहे, तो इसी बात को ध्यान में रख के हम लोग को कमेटी से भी बोला गया है कि अपने यहाँ पे एक MBBS डॉक्टर चाहिए। तो इसी अपने परेशानी देख के मद्देनजर रखते हुए हम डॉक्टर को अप्रोच हुए। सर डॉक्टर साहब को 6 महीने पहले से हम लोग बोले सर यहाँ पे हमको डॉक्टर की ज़रूरत है। सर भी दिल बड़ा करके यहाँ पे आ गए और बताया, सर एक बार मुआयना करके बोले अरे यहाँ पे तो बहुत गरीबी में है कई लोगों के पास 100-200 बाहर देने के बजाय यहीं पे मैं 80 रुपये लेकर ही मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट देता हूँ और 24 आवर्स रहता हूँ, बल्कि सर बाजू रूम में ही रह रहे हैं। आधी रात में भी आप लोग को किसी भी प्रॉब्लम होगी तो सर अवेलेबल रहेंगे। ATM के जरिए रकम ड्रॉ करने की अनजान शख्स से मदद तलब करने के बाइस नामालूम शख्स ने मुस्तहिक के खाते से ATM के जरिए 54,000 रकम ड्रॉ करने का जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में पेश आया वाक़या। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा टीचर्स कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले आदिल हुसैन RTC ड्राइवर ने इनके अपने ATM से SBI के ATM से रकम निकालने के लिए नामालूम फ़र्द की मदद तलब की, जिस पर अनजान शख्स ने ATM से 10,000 रुपये ड्रॉ करके देने के फौरी बाद ATM में तब्दीली अमल में लाते हुए 30 मिनट के वक्फे के बाद इसी ATM से 54,000 रुपये ड्रॉ करने के ताल्लुक से आदिल हुसैन को फ़ोन के जरिए हासिल करदा मैसेज पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर टाउन CE महेंद्र रेड्डी ने फौरी तौर पर जाए मुकाम का जायजा लेकर केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात करने का इंकशाफ किया। నాకు తెలియదు మెసేజ్ వచ్చిందాక అందులో 34,000 ఉండే నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళిన దాకా ఇంకా 20,000 తీసేశాడు. మొత్తం ఏమో 94,000 చిల్లర దోచుకున్నారు వాళ్ళు. అతని ATM కార్డు కాకుండా ఏదో ఇంకొక వ్యక్తి యొక్క ATM కార్డు ఇచ్చి
అతని యొక్క ఏటీఎం కార్డును అతనే తీసుకొని పోవడం జరిగింది. కావున ప్రజలందరూ కూడా బాన్స్వాడ పట్టణంలో కానీ ఇతర నివసించే ప్రజలు కానీ గుర్తు తెలియని వ్యక్తులను నమ్మవద్దు. ఎవరికి కూడా ఏటీఎం కార్డు తెలియని వ్యక్తులకు ఏటీఎం కార్డు ఇచ్చి మనీ విత్డ్రా చేయమని ఇవ్వవద్దు. ఇప్పుడు అనవసరంగా అతను ఆ యొక్క ఏటీఎం కార్డు ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎవరో తెలియకుండా ఇవ్వడం వల్ల ఒక 94,000 రూపాయలు నష్టపోవడం జరిగింది. कोटगिर मंडल के ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच लक्ष्मण ने सीएम रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहक़िद में फ्राहमी अमल में लाई। कोटगिर मंडल के मुकाम पर वाक़ ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच लक्ष्मण ने सीएम रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर करदा CMRF चेकों की इस्तिफादा कुनगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबी अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्ते तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। इसी तरह से सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ किया, जिसके तहत ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज मुआलजे में काम आ सके। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज मुआलजे के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए CM KCR की जानिब से रकम इमदाद देने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मंडल रायतु सामान्य समिति सदर किशोर, MPTC सलीम, BRS सीनियर कायदीन साई बाबा, धवुलैया, शंकर गौड व दीगर ने शिरकत की। ఆవరణంలో CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమంలో CM KCR గారి యొక్క సంక్షేమ పథకాలలో భాగంగా CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు పంపిణీ జరుగుతుంది. ఈరోజు 7 చెక్కులను పంపిణీ చేశాం. ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క హయాంలో 92 చెక్కులను. तेलंगाना में 14 एडिशनल कलेक्टर्स का तबादला अमल में लाने के ताल्लुक से गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने मकतूब जारी किया। तेलंगाना में 14 एडिशनल कलेक्टर्स के तबादले अमल में लाने के ताल्लुक से गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी ने मकतूब जारी किया, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से। जोगुलम्बा गदवाला जिले को अपूर्वा चौहान, वरंगल को अश्विन ताताजी, जिले मंचियाल को बी राहिल, नारायणपेट को मयंक मित्तल, जगतियाल को मंदा मकरंदा, जनगामा को देशाई, जिले मेडचल को अभिषेक अगस्तिया, जिले नलगुंडा खुशबू गुप्ता, विखाराबाद को राहुल शर्मा का तकर्रुर अमल में लाया गया। पोस्टिंग न मिलने वालों को मुताल्लिक़ इंतजामी महकमे में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। रेंजर मंडल के साटापुर चौरास्ते पर कांग्रेस पार्टी PCC सदर रेवंत रेड्डी के जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। तेलंगाना कांग्रेस PCC सदर रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर रेंजर मंडल यूथ कांग्रेस कायदी ने साटापुर चौरास्ते पर केक कट करते हुए सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस कायद कार्तिक ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना कांग्रेस PCC सदर रेवंत रेड्डी के जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र केक कट किया गया। इसी तरह से अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन ML राजू, किरण, सदाम, साइलू, गंगाधर, कृष्णा, अब्बू व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని రేంజల్ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ సంస్థ అయినటువంటి యోజన కాంగ్రెస్ పక్షాన వారి యొక్క జన్మదినాన్ని रेंजल मंडल साटापुर ग्राम में निर्वहिंచుకోవడం జరిగింది। मुसाफिरों को बर वक्त महफूज तरीके से मंजिल तक पहुंचाते हुए बेहतर खिदमत अंजाम देने का आर्मूर डिपो मैनेजर कविता ने किया इजहार। आर्मूर डिपो के मैनेजर के कविता ने दिगम देहात के एक मुसाफिर अनुमा लक्ष्मी जो कि गुज़िश्ता 12 साल से RTC बस में बाकायदगी के साथ सफ़र करने के पेश नज़र शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाए गए। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम से रीजनल मैनेजर ने खिताब करते हुए कहा कि RTC की जानिब से अवाम को हर तरह की रियायतें देने के अलावा कार्गो खिदमात की फराहमी अमल में लाई जा रही हैं। इसी तरह से तिरुमला तिरुपति के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन की सहूलत दी जा रही है। लिहाजा मुकामी अवाम इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच गंगा रेड्डी, MPTC, RTC मुलाजमिन ने शिरकत। हिंदुस्तान भर में दोपहर 2 बजे और तेलुगु रियासत में 5 बजे के बाद चांद ग्रहण।
दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया जा सकेगा। जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, शुमाली बहरुल ओशियानुस और बहरुल काहिल में ये दिखाई देगा। चांद ग्रहण हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:39 पर शुरू होगा, जबकि मुकम्मल ग्रहण दोपहर 3:46 पर शुरू होगा। साइंसदानों के मुताबिक चांद ग्रहण दोपहर 2:39 पर शुरू होगा और इसके इख्तिताम का वक्त 6:19 होगा। तेलुगु रियासतों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 5:40 से 6:19 तक जुज़वी चांद ग्रहण का नजारा किया जा सकता है। साइंस की वजारत ने कहा है कि जुज़वी और मुकम्मल ग्रहण के मरहले हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मुल्क में चांद नमूदार होने से पहले ग्रहण शुरू हो जाएगा। अलबत्ता जुज़वी और मुकम्मल ग्रहण का इख्तितामी मरहला मुल्क के मशरक़ी हिस्से में देखा जा सकेगा, जबकि जुज़वी ग्रहण का इख्तितामी मरहला मुल्क के बाकी हिस्सों में नजर आएगा। मुल्क के मशरक़ी हिस्सों के शहरों जैसे कोलकाता और गुवाहाटी में चांद नमूदार होने के वक्त मुकम्मल ग्रहण जारी रहेगा, जबकि दीगर शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में चांद नमूदार होने के वक्त मुकम्मल ग्रहण के बाद जुज़वी ग्रहण होगा। चांद ग्रहण पूरा चांद निकलने वाले दिन इस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के बीच में आती है और जब ये तीनों एक ही कतार में आ जाते हैं। हिंदुस्तान में 500 और 1000 रुपए की करेंसी नोट को मनसूख होकर 6 साल मुकम्मल। हिंदुस्तान में 500 और 1000 रुपए के बड़े करेंसी नोट मनसूख होकर आज 6 साल मुकम्मल हो गए। आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अचानक बड़े करेंसी नोट को मनसूख करने का ऐलान किया था। हुकूमत के दावे के मुताबिक मैशियत को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम बनाने में मदद की है, जबकि अपोजिशन का कहना है कि वो काले धन को रोकने और नकद पर इन्हिसार कम करने में नाकाम रही है। 6 साल कबल 8 नवंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को ख़त्म करने का ऐलान किया था और इस बेमिसाल फैसले का एक अहम मकसद डिजिटल अदायगियों को फ़रोग़ देना और काले धन को रोकने के अलावा दहशत गर्दी की फंडिंग को ख़त्म करना था। रिजर्व बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक अवाम के पास करेंसी 21 अक्टूबर को 30.88 लाख करोड़ रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जिससे ये जाहिर होता है कि नोटबंदी के इक़दाम के 6 साल बाद भी नकदी का इस्तेमाल काफ़ी है। 30.88 लाख करोड़ रुपए पर अवाम के पास करेंसी 4 नवंबर 2016 को ख़त्म होने वाले 15 दिन की सतह से 71.84% ज़्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक तहकीकी रिपोर्ट में कहा है कि अदायगी के निज़ाम में करेंसी इन सर्कुलेशन CIC का हिस्सा माली साल 2015-16 में 88% से कम होकर 2021-22 में 20% रह गया है और इसके मज़ीद कम होकर 11.15% रहने का तखमीना है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल लेन देन का हिस्सा 2015-16 में 11.26% से 2021-22 में 80.4% तक मुसलसल बढ़ रहा है और 2026-27 में 88% तक पहुंचने की उम्मीद है। कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मलाराम में फ्लैट लेवल पर जारी कामों का जायजा लिया। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मंगल को निजामाबाद शहर के मज़ाफ़ात में मलाराम गांव में हुकूमत की जानिब से कायम की गई धरती टाउनशिप का दौरा किया। फ्लैट लेवल पर जारी कामों का जायजा लिया गया। इस माह की 14 तारीख को मरबूत ज़िले दफातर के हातिमी अवामी नीलामी के जरिए फरोख्त के लिए तैयार करदा 80 प्लाटों की जांच की गई है और अहदेदारों को कई तजावीज़ पेश किए गए। ठेकेदार को तजवीज़ दी गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीराती काम तसल्ली बख्श अंदाज में जारी है और आखिरी मरहले के बाकी कामों में तेज़ी लाई जाए। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी के साथ एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर, चित्रा मिश्रा, निजामाबाद दही तहसीलदार अनिल, TS, IIC मैनेजर दिनेश और दीगर मौजूद थे। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की गुरु नानक जयंती तकरीबात में शिरकत। जिले इंतजामिया KC नारायण रेड्डी ने मंगल को गुरु नानक की जयंती के मौके पर जिले मरकज़ के गजुलपेट के गुरुद्वारे में मुनक़िदा गुरु नानक जयंती तकरीबात में शिरकत की। सिखों का पहला उस्ताद कलेक्टर जिन्होंने गुरुद्वारे का दौरा किया, सिख मजहबी रहनुमाओं ने रवायती इस्तकबाल किया। कलेक्टर इनके साथ दुआ में शामिल हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि तमाम मज़ाहिब का जो हर एक है, इन्होंने कहा कि मजहबी गिरद और मुअज़्ज़िज़ीन की ज़िंदगी सबके लिए मिसाली है और अगर हम इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर दूसरों की मदद करें तो ये मुअज़्ज़िज़ीन को हक़ीक़ी ख़िराज अक़ीदत होगा। इन्होंने कहा कि ज़ात पात, मजहब और सियासत से बालातर रूहानी प्रोग्राम में और खुदा के सामने सब बराबर है। गुरु नानक जयंती के मौके पर ज़िले के तमाम सिख भाइयों को मुबारकबाद। कलेक्टर के साथ सिख मजहबी रहनुमा सरदार दर्शन सिंह, सरदार कृपाल सिंह, सरदार राजेंद्र सिंह, सरदार गोबंद सिंह, सरदार जय सिंह और दीगर भी थे।
53వ గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ వచ్చేసిన సిక్ సోదరులందరికీ, సిక్ సోదరీమణులందరికీ కూడా గురునానక్ జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడే వచ్చేసిన మేయర్ గారికి, అదేవిధంగా నాతో పాటుగా ఈ కార్యక్రమం పాల్గొన్న సిక్కు పెద్దలందరికీ, మీడియా అందరికీ కూడా గురునానక్ జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ తప్పకుండా వారి ఆశీస్సులు అందరిపై ఉండాలని, అదేవిధంగా వారు ఏదైతే మనకు परम सहायक मंगलदायक सद्गुरु नानक हो, सद्गुरु नानक हो। सबको मेरा प्रणाम। आज 553 सद्गुरु नानक की आज जयंती उत्सव पर पहले उनको प्रणाम करते हुए कार्तिकिया पूर्णिमा के पेश नजर एमएलसी के कविता व जिले टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के केदारेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता व जिले टीआरएस सदर आर्मर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने कार्तिका पूर्णिमा के पेश नजर नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े केदारेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए आश्रम के बानी मंगी रामलू महाराज से आशीर्वाद हासिल किया। 36 రోజుల తన దీక్షను పూర్తి చేసుకొని మనందరికీ ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికి, మనకు ధైర్యం నింపడానికి వారు ఈరోజు ఎంత కూతురుగా ఉన్నటువంటి వారు బయటకు వచ్చి మనందరికీ కూడా ఈ శుభదినాన ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు. మరి అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టంలో పాల్గొనేటటువంటి అదృష్టం నాకు వచ్చినందుకు నేను చాలా చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడే ఇంట్లో కేదారేశ్వర నోము చేసుకొని ఇక్కడ చక్కగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవడానికి రావడం చాలా మంచి శక్తంగా, చాలా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి కార్యక్రమాన్ని చేసిన మా అక్క కవిత గారికి, వేదికమైనటువంటి ఎంపీ చైర్పర్సన్ విఠలరావు గారికి, వారికి వచ్చేసినటువంటి సుధా లక్ష్మణకు, విశాలి గారికి, సుమన గారికి, రమ్మక్కకు మరియు మా నాయకులందరికీ, అదేవిధంగా సాయి కిషోర్ గారికి, మా బ్రహ్మకుమార్ అక్క గారికి, వీరరెడ్డి గారికి, కాశీ నుంచి వచ్చేసినటువంటి పండితులకు, బ్రాహ్మణులందరికీ మరియు వేదికమైన పూజలో పాల్గొన్న అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరి కార్తీక మాస కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। मनुगुरु जिला इंतखाबात के बाद रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की वेलपुर के कैंप दफ्तर पर आमद के मौके पर अवाम की हलचल नजर आई। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल के कैंप दफ्तर पर बालकोंडा अलखसमली के बालकोंडा, मेंडूरा, मोड़ताड़, कमरपली, एरगटला, भीमगल, वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक व सी मारफ दरख्वास्तों पर दस्तखत किया। इसी तरह से मनुगुरु इंतखाबात के बाद पहली मरतबा रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की वेलपुर में आमद के मौके पर TNGOs के ज़िले कायदीन केश नारायण रेड्डी व दीगर ने मुलाकात करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इसके अलावा ज़िले ओलंपिक संगम इंतखाबात के पेश नज़र गड़ीला रामलू के अलावा PET व रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करने वालों में शामिल है। AICC राहुल गांधी की जानिब से शुरू करदा भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से होते हुए गुरुद्वारा देगलूर, बिलोली, नांदेड़ तक जारी रहने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। AICC राहुल गांधी की जानिब से शुरू करदा भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से होते हुए गुरुद्वारा देगलूर, बिलोली, नांदेड़ तक जारी रहने के दौरान मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की व राहुल गांधी से सेल्फी लेने के लिए अफराद की जानिब से एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए देखा गया, जिससे भारत जोड़ो यात्रा में अवाम की हलचल नजर आई। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत की जानिब से अवाम में नफरत का माहौल पैदा करने के बाइस अवाम में डर खौफ तारी होने का किया। मनुगुरु जिला इंतखाबात में TRS पार्टी की शानदार जीत पर RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजोडी गोवर्धन ने रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR से मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। मनुगुरु जिला इंतखाबात में TRS पार्टी की शानदार जीत के पेश नज़र RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजोडी गोवर्धन ने रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR से मुलाकात करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बातज़ा रूरल MLA बाजोडी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि मनुगुरु हल्के में मुक़ीम अवाम की जानिब से TRS पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर तमाम का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर।
टीआरसी स्कीमात से हर घर रोशन। वेलपुर में मिले दफ्तर पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ CMRF कल्याण लक्ष्मी की अर्जियों को दी मंजूरी। रवा साल का आखिरी चांद ग्रहण का आगाज सुबह 5:30 तक रहेगा जारी। हिंदुस्तान भर में दोपहर 2 बजे से ग्रहण की हुई शुरुआत। नंदीपेट में मुत्तहदा जिला MLC के कविता व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने कार्तिका पूर्णिमा के सबब अंजाम दी खुसूसी पूजा। मुनुगुडु अवाम का फैसला काबिले सताइश व तारीख साज। रियासती वजीर KTR से TSRTC चेयरमैन बाजरी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए किया इजहार। गुरु नानक जयंती के मौके पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व मेयर नीतू किरण ने की तकरीब में शिरकत व पेश की मुबारकबाद। हिंदुस्तान में 500 व 1000 रुपए की करेंसी नोट को मनसूख हुए आज 6 साल मुकम्मल। नोटबंदी के 6 सालों में डिजिटल लेन देन में हुआ काफी इजाफा। घर को आग लगी घर के चिराग से। 9 नवंबर को पूरी दुनिया में यौम उर्दू का इनेकाद, लेकिन जिले व शहर में कोई एक तकरीब मुनक़िद नहीं, अफसोस। आठ माह बाद कल मजलिस बल्दी निजामाबाद का इनेकाद। मसाइल पर होगी यकसुई या हंगामा आराई, अवाम की नजर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।